Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Bauxite. Bauxite is a non-ferric metallic mineral here. The bauxite is a non-ferric metallic mineral. It is ore from which the aluminium metal is produced. You know that the bauxite is very important. Ore from here aluminium metal is produced. India has a reserve of bauxite are sufficient to be keep the country self-reliant. Aluminium extract from the ores is used in making aeroplane, electrical appliances and goods. There is the most important use for here aluminium, and also is a use of here household fitting and utensil and etc. The bauxite it is also used for manufacture of white color cement and contain of chemical. There is an important here the manufacture of the white color cement and contain of chemical. India is reserve of bauxite all of the grade has been estimated at 3,037 million ton. There is important here India is graded estimate at 3,037 million tons. The next year, the production of bauxite in India. There is a most important table here. A table here show here is the years and production in a thousand of ton. There is a production of thousand in ton here. On 1951, there is a 68.1 ton, and here 1961 the 475.9 thousand ton, and 1971 is a 1517.1. There is important, and 1981 there is a 1954.6 thousand ton, and the 1991 there is a 4977.0 ton thousand tons is produced here, and then 4 to the 5 there is a 11,598. There is the most important period time is the 2004 to the 5 year. A maximum production of the 1,000 ton of the bauxite here. The next distribution. Distribution is also is important here. Bauxite has a wild occurrence in a country. A major reserve occur in the Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Goa, and Uttar Pradesh. The bauxite is the most important site here. Occur reserve is a major is Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, and Tamil Nadu, Goa, and Uttar Pradesh. There is the most important state here. Jharkhand account for the 30% of India as a total reserve and 37% of the country as a total production here. The important deposits are localized in the Palums, Ranchi, and Lohargarh is a district. There is the most important here. Gujarat contribute 12% to be a total production and equal percentage to be a total reserve of country. The deposits are found in the Jonagad and the Aramavali district. There is the most important district or deposit of this found here. The next year, Madhya Pradesh and Chhattisgarh account for 22% of the total reserve of country and 25% of the total production here. The three important bauxite ores reside in this is a state are is a Sarguja and Raigad and the Bilaspur districts in the Amarkantak and Plateau is a Malikana range in the Bilaspur. And drug bottle, this is their regions are Chhattisgarh, Mandhyala and Sehodos and Bhaghat district. There is a Katanis district is the Madhya Pradesh here. This is the most important state on the point of the bauxite here. Maharashtra account for the relative a small production of the country, 80% of the total, but possesses the second largest bauxite reserve constitute of the 22% of the country as a total reserve here. The bauxite occur in the Kolhapur, Raigad and Thana, Stara and the Ratnagiri is the district. There is an important here side of Maharashtra account of related to small production of country 80% of total. In Karnataka, the reserve of bauxite occur in the northern western part of the Belguma district. However, a deposit of the bauxite has been to discover in the eastern Ghat is Odisha, Andhra Pradesh, and Salima, Nilgiri, and the Madurai district of the Tamil Nadu and Banda district of Uttar Pradesh also have a
is a workable deposit of bauxite here. There is an important here bauxite Uttar Pradesh side. India export to the bauxite to a number of countries. The leadings of imported to the India is a bauxite is Italy, is followed by the UK and West Germany and Japan. There is the most important side here. The important has arrived here. This is the most important point. A bauxite in the ore from their aluminium metal in extract. You know that there is the most important box, not book. The bauxite is a ore from the which aluminium is a metal is extracted here. Bauxite is used for the manufacturing white color cement and contain of chemical also here. And major is occur in the Jharkhand, Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Goa and Uttar Pradesh. There is the most important here map they show on your screen. The most important here map that is show in your screen that India is a bauxite ore. You know that there is a India is a bauxite ore here. The first problem there is see there is a map. There is an important side of here Gujarat and the Maharashtra also. There is a most important and also important here a side here Madhya Pradesh. There Madhya Pradesh is also important here and nearby Madhya Pradesh is all side is a present. The name is important is a Bengaluru, Simanga and the Thana and Pune and Jamnagars and Amralis and the Kochi. There is a most important side of bauxite found Indian here. The India is the most important state. So in your screen यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धात्विक अलोक खनिज. देखिए यहाँ पर इस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धात्विक अलोक खनिज. देखिए अलोक का मतलब होता है वो सारे मटेरियल जिसमें जो है लोहे का कहीं भी जो है नामो निशान नहीं होता, इसलिए इसको अलोक खनिज कहा गया है, जिसमें लोहे का जो है अंश बिल्कुल ही नहीं होता है. तो आपको सिंपली ये बात पता है. देखिए यहाँ पर साफ बात बताया गया है कि अलोक खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे का अंश होता ही नहीं. सिंपल सी बात. इसमें लोहा जो है थोड़ा सा अमाउंट में भी नहीं प्रेजेंट होती है. इसके अंदर धात्विक खनिज शामिल होते हैं सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि. तो आप समझ गए होंगे कि धात्विक अलोक खनिज कौन कौन से हैं. सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि. ये सभी जो है धात्विक खनिज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो उपलब्ध धातु दैनिक जीवन में बहुत ही काम आती है, इसलिए बहुत कॉस्टली भी है. वैसे भारत में इस खनिज की जो है उपलब्धियां एवं भंडार के मामले में काफी कमजोर है और कहते हैं भारत में ये अभावग्रस्त है. भारत में ये सारे जो है बहुत महंगे मिलते हैं और भारत में देखा जाए तो इसकी खदान भी नहीं है, इसलिए ये बहुत कॉस्टली है और बहुत जो है हम दूसरे देशों से हमें मंगवाना पड़ता है. तो ये आप समझ गए होंगे कि धात्विक अलोक खनिज जो होते हैं जिसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता इत्यादि जो है, और इसका जो है मात्रा भारत में बहुत ही कम है. इसके अंतर्गत अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो साफ हो जाता है. कहते हैं बॉक्साइट बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज तत्व है. कहते हैं एक अलोक खनिज निक्षेपण है जिसमें अल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है. भारत में बॉक्साइट खनिज में इतने निक्षेपण है कि भंडार है कि भारत एल्युमिनियम के मामले में जो है आत्मनिर्भर रह सकता है. यानी देखा जाए तो भारत में बॉक्साइट खनिज के इतने निक्षेपण के भंडार है कि अगर एल्युमिनियम में जो है भारत आत्मनिर्भर है, यानी हमें दूसरे देशों के मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है. भारत में इतने अमाउंट में जो है एल्युमिनियम प्रेजेंट है. एल्युमिनियम धातु की जो है बॉक्साइट खनिज से निकाला जाता है. देखिए एल्युमिनियम धातु जो है बॉक्साइट के खनिजों से निकाला जाता है, यानी कहा जा सकता है कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम के लिए आदर्श है. कहते हैं यहाँ पर बहुमुखी उपयोग जो है वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है. तो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम का उपयोग जो है वायुयानों में निर्माण में किया जाता है क्योंकि इसकी वजन जो होती है बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही कम होता है. कहते हैं विद्युत उपकरणों के निर्माण में, बिजली के घरेलू उपयोगी सामान बनाने में, घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में भी एल्युमिनियम का बेखूबी प्रयोग किया जाता है. तो आप समझ गए होंगे कि एल्युमिनियम का यहाँ पर कितना अधिक इम्पोर्टेंस है. कहते हैं बॉक्साइट का उपयोग सफेद सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है. तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि बॉक्साइट का उपयोग जो है सफेद सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है और कुछ रासायनिक वस्तुएं बनाने में भी इसका देखो भी प्रयोग होता है. और भारत में सभी प्रकार की बॉक्साइट का जो है अनुमानित भंडार जो है 3000 जो है 37 मिलियन टन है. तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है इसका काफी जो है उज्जवल भविष्य है और भारत में जो है भारत इस बॉक्साइट से जो है आत्मनिर्भर है और किसी दूसरे देशों से जो है इसको आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है.
यदि हम बक्साइट की बात करें और तुलना करें किस देश में जो है किस समय काल में कितनी उत्पादन हुआ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में बक्साइट का उत्पादन देखिए वर्ष यहाँ दिखाया गया है, उत्पादन जो है 1000 टन के रूप में दिखाई गई है। तो देखिए 1951 में जो है 68 यानी 68.4 जो है 1000 टन की उत्पादन हुई थी। वही अगर देखें 1961 में तो बढ़ के जो है 475.9 जो है 1000 टन हो गई। वही 1971 में जो है बढ़ के 1517.1 जो 1000 टन हो गई और इसकी दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। 1981 में जो है 1900 जो है 54.6 जो है काफ़ी बढ़ गई। और वही बात करें 1951 में तो कहते हैं यहाँ पर जो है 4977 जो है जो 1000 टन वृद्धि हो गई। लेकिन सबसे अधिक वृद्धि देखने को कब मिला, जब 2004 से 5 की आंकड़ा गणना की गई, जहां पर 11,598.0 जो है वृद्धि हुई, जो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर उत्पादन को दर्शाया गया है। देखा जाए तो भारत में जो है अगर भंडार की बात करें तो भारत में इसका भंडार जो है महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थित है। देखिए है, लेकिन अभी भी ये जो है अव्यवस्थित फॉर्म में प्रेजेंट है। कहते हैं झारखंड में भारत के सकल बक्साइट भंडार का 13% भाग तथा उत्पादन में जो है देश के कुल उत्पादन का 37% भाग मिलता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि झारखंड में भारत के जो है सकल बक्साइट भंडार का 13% भाग तथा उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का 37% भाग मिलता है। बक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेपण इस राज्य के जो है पालामू, रांची एवं हैदराबाद जिले में व्यवस्थित है। तो ये भी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अगर बात करें हम गुजरात में तो कहते हैं गुजरात में बक्साइट अयस्क के निक्षेपण के भंडार राशि देश के कुल भंडार के 12% भाग के बराबर है। यानी देखा जाए तो यहाँ गुजरात के जो है बक्साइट काफी जो है मिल रहे हैं, 12% बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इतनी ही प्रतिशत जो है भागीदारी उत्पादन के मामले में भी है। बक्साइट के निक्षेपण इस राज्य के जो है भावनगर, जूनागढ़ जो अमरेली जिले में व्यवस्थित है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ को मिलाकर अगर देखा जाए तो देश के कुल बक्साइट भंडार का 22% भाग जो है उत्पादन में देश के कुल उत्पादन का 25% भाग इन दोनों राज्यों से निक्षेपण से प्राप्त होती है। यानी देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। कहते हैं देश के उत्पादन का कुल 25% भाग जो है इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। और इन राज्यों में बक्साइट के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे अमरकंटक, पठार में जो है सरगुजा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले। मेकल्स पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है बिलासपुर, दुर्ग और दोनों ही छत्तीसगढ़ एवं मंडला जो है शहडोल एवं बालघाट जिले, मध्य प्रदेश तथा कटहनी जिला जो कि मध्य प्रदेश सम्मिलित है, काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको समझ रहना चाहिए कि 25% का जो है योगदान देता है भारत के कुल उत्पादन के अंतर्गत। महाराष्ट्र में बक्साइट अयस्क के निक्षेपण तथा उत्पादन जो है अपेक्षाकृत बहुत कम है। यानी महाराष्ट्र में जो है बक्साइट का उत्पादन बहुत ही कम है और देश के कुल उत्पादन का सिर्फ 18% भाग का उत्पादन यहाँ होता है। यानी देश के कुल उत्पादन का जो है 18% भाग ही जो है महाराष्ट्र में होता है, परंतु निक्षेपण का कुल भंडार देश के कुल भंडार के 22% भाग के बराबर ही माना जाता है। बक्साइट के महत्वपूर्ण निक्षेपण जो है कोल्हापुर, रायगढ़, थाने, सतारा एवं जो है रत्नगिरी जिले में व्यवस्थित है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि 22% भाग जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि काफी महत्व रखता है। कर्नाटक के जो है बेलागाम जिले के उत्तर पश्चिमी भूभाग में बक्साइट के निक्षेपण भी मिलते हैं और देश के जो है पूर्वी घाट क्षेत्र में बक्साइट के विशाल निक्षेपित अवस्थित है। और इस घाट क्षेत्र में जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अन्य क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु के सलेम, नीलगिरी एवं मध्य जिले में, उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले में बक्साइट अयस्क के जो है महत्वपूर्ण निक्षेपण मिलते हैं। तो ये सारी बातें काफी महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है। देखा जाए तो भारत विभिन्न देशों के बक्साइट का जो है निर्यात करता है। यानी भारत जो है विभिन्न देशों के बक्साइटों का निर्यात करता है और प्रमुख आयात देश है इटली, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी एवं जापान। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आयात देश, जिसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात को भी दर्शाया गया है जो आपके बॉक्स में है, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए कि बक्साइट अयस्क से जो है एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। बक्साइट अयस्क से
एल्युमिनियम धातु बखूबी निकाली जाती है। और बक्साइड अयस्क का उपयोग जो है सफेद सीमेंट तथा कुछ रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है किससे? बक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। और यहाँ तक कि इसका उपयोग जो है सीमेंट तथा कुछ रसायनों में भी उपयोग किया जाता है। बक्साइड निक्षेपण के जो है विशाल भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो और भी तब बन जाएगा जब हम इसको मैप में जो है अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं इसका मैप में क्या किस बात को तरफ उजागर किया गया और कुछ क्षेत्र को जो है इंपॉर्टेंट रखा गया है। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हो मैप आ गया है जहाँ जो है भारत के बक्साइड क्षेत्रों को जो है यहाँ पर अंकित किया गया है। तो आप देख सकते हो कर्नाटक साइड भी, महाराष्ट्र साइड भी इसके जो है घने डॉट दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काफ़ी है। प्लस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के साइड भी आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ के साइड भी कुछ नज़र आ रहे होंगे और सबसे अधिक तो गुजरात के साइड भी आपको ये नज़र आएंगी। अब देखिए कच्छ में भी इसका जो है विशाल भंडार है, जवानगर में भी है, अमरेली में भी है, भावनगर में भी है, साथ में थाने और पुणे में भी इसका जो है कुछ मात्रा देखने को मिल रहा है। और रत्नगिरी में भी आपको नजर आ रहा होगा, रत्नगिरी में भी जो है बक्साइड की मात्रा यहाँ आ रहा है। और बेलगामा, शिमोगा में भी आ रहा है जो कर्नाटक साइड है, कोल्हापुरी में भी है। यहाँ की अगर श्रीकुलम में भी आप देखोगे तो उस क्षेत्र में भी पाया गया है। अनकरापुट हो, चाहे सुंदरगढ़ हो, बिलासपुर हो या बालघाट हो, शहडोल हो या जबलपुर हो या कटनी हो या लोहरदंग हो, तो ये सारे क्षेत्र में जो है बक्साइड के जो है विशाल भंडार है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो ये भी रहता है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है। और शेयर करने के लिए जो आप कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को भी फायदा होता है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको भली भांति पता ही है कि इसका नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। साथ में अगर कोई टॉपिक अगर रिसर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो शायद आपको दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नजर ना आए। इसलिए अच्छा है कि आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको होम पेज मिल जाएगा जहां पर सारे वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत रखी गई है। साथ में अगर आप सिलेबस के रिगार्डिंग देखना चाहते हो, क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो या टॉपिक के अंतर्गत देखना चाहते हो तो उसका भी प्रावधान किया गया है प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो रहेगा। साथ में अगर कुछ आपको राय विचार देना है, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट अवश्य कीजिए।